سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور دھڑم دھڑم کر کے آپ نے اتنے بندے وہاں مار دیے, اتنے بندے وہاں مار دیے. اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, اور اگر حاصل ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا, ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو فیور کر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اور ویسے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, مجھے اور آپ کو کوئی پڑوسی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا. ہم نے ٹھکانہ دیا, وہ نہیں دیں گے ہمیں. لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانہ دیا تھا, تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہی ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے. اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں, کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں, اور ہمیں خوشی ہے. زیرو سے کروڑ پتی بن گئے, ان کی جائیدادیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں. 100 دفعہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے. مسلمان ہیں. ضیاء الحق کی تقریر آپ سنے جا کے, جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا, اس نے کہا تھا, اس کے الفاظ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے, آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے. آپ نے اس سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا. تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور معلومات جب تک اوتھینٹک معلومات نہ ہو نا, تبصرہ مت کیا کرو. اوتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح ہے, اس ذہن میں رکھنا. نہ پڑوسی رکھیں گے, چاہے وہ اسلامی حکومت ہے, ہم سے اچھے ہوں گے, 100 دفعہ اچھے ہوں گے. ان کی بڑی قربانیاں ہیں, 100 دفعہ قربانیاں ہیں. ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں, 100 دفعہ آئی ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی, یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے. لتر مار کے بولیں گے دفع ہو یہاں سے. عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے, لتر مار کے نکالیں گے. لتر مار کے. یقین نہیں آتا, جاؤ, چلے جاؤ. سمجھتے ہو؟ باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے. جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے, 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم ان سے ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں, جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ. میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں. باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی. اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. 100 دفعہ تیار ہیں. اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں. اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. نہیں ہوا ختم. بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی. بعض دفعہ اسباب کے بغیر, جیسے معجزے و کرامات. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب. ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے. بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا, غالب آئے, وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی, بہت کچھ ہو گیا, آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو. اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل. کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹ صاحب رہا کرتے تھے, ہر وقت مولویوں کی برائی, مولوی ایسے, مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, کسی 2 نمبر مولوی کے, تو وہ ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار. تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, کوئی مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی 2 نمبر. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی قاری صاحب سے کچھ غلط ہو گیا. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ, جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو. لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار, سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا. اس کی تو 100% غلطی ہے, لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا, وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہیں نا, 2 نمبر اور 1 نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے, عالم ایسے, بزرگ ایسے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکات. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا.
कैंसर जब हुआ है तो हालत खराब, डॉक्टर ने कह दिया इतने दिन के मेहमान हो, अब दुबला होना शुरू हो गया, हड्डियां वड्डियां जो बेचारे कैंसरों के, तो उसको अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी। उसको अंदाजा हो गया जो मेरी जो दबदबाहट और रोब और सारे डॉक्टर, आज साइंस अपनी तरक्की की इंतहा को पहुंची हुई है, 1 करोड़पति आदमी को जिंदगी नहीं दे सकती। जवान भी था, उसको अंदाजा हो गया भाई ये सब मादी असबाब की 2 टके की हैसियत नहीं है, मौत अपनी आंखों से नजर आ रही। हकीम अख्तर साहब ने फरमाया कि उसने सारे उलमा को बुलाया, सबसे माफिया मांगी, भाई मुझसे गलती हुई है, तौबा की और दुनिया से चला गया। ये पुराने जमाने के मुल्हिद थे, जब लित्तर पढ़ते थे तो अल्लाह याद आ जाता था। आज के मुल्हिद इतना ढीठ है ना, सुबह शाम अजाब अपनी आंखों से देखे, पिसे अबू जहल की तरह। क्या अब्दुल्ला बिन मसूद उसकी सीने पे बैठे हुए हैं गर्दन काटने के लिए? उसको मान लेना चाहिए था ना, इस्लाम गालिब आ गया। देखो 313 को अल्लाह ने 1000 पे गालिब किया, लेकिन वो क्या कहता है, नीचे से गर्दन काटना, मरने के बाद पता चले किसी सरदार की गर्दन है। समझ रहे हैं? मरने के बाद पता चले। आज के मुल्हिद ऐसे हैं, अबू जहल जैसे। जब एक शरई हुक्म लोगों को बयान किया जाता है कि बगावत के लिए या जिहाद के लिए जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर तैयारी हो, दुश्मन से लड़ने की ताकत हो, इस ताकत के बगैर आपको ना जंग करने की इजाजत है ना मुसल्ला बगावत की इजाजत है। जब तक आपके पास पावर नहीं है, सामने टैंक है आपके पास, उसके मुकाबले में ना टैंक है ना जहाज है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे बगावत करोगे? लोग कहते हैं बदर में कैसे हो गया, 313 ने 1000 से मुकाबला किया और खालिद इब्ने वलीद ने 60 से 60,000 का हिसार तोड़ा। भाई बदर में 313 का जो 1000 से मुकाबला था वो नबी के इरादे से नहीं था, वो तो किसी और इरादे से निकले थे। तो मुशरिकीन ने अचानक 1000 का लश्कर लेके आ गए, तो वो तो इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। तभी फिर मदद अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। तो वो मोजज़ा था कि 313,000 पे गालिब आ गए। नबी खुद 313 को लेके मक्का पे चढ़ाई के लिए कभी भी नहीं निकले। नबी मक्का पे चढ़ाई के लिए अपने इरादे के साथ उस वक्त गए हैं जब 10,000 का लश्कर तैयार हुआ है, फिर आपने मक्का पे अटैक किया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देखो 13 साल मक्का में आपने जिहाद नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं ईमान नहीं बना था, ना 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 ना, उस वक्त का जो ईमान था वो बाद में उस लेवल का ईमान तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान कह रहे जो हिजरत से पहले ईमान ले आए ना, उनका ईमान सबसे तगड़ा है। बिलाल हबशी का ईमान रजी अल्लाह अन्हु, अबू बकर का ईमान, उमर बिन खत्ताब का ईमान, सईदना अली का ईमान, सईदना उस्मान का ईमान, सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद का ईमान। ये वो लोग थे जब इस्लाम इंतहाई कमजोर था, ऐसे पावरफुल ईमान वाले लोग थे ये। उस वक्त मुनाफिक का तस्वुर ही नहीं था, लेकिन आपने जिहाद किया उस 13 साल में। बोलो सबर 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 की तलकीन। इतना जुल्म हुआ है, खब्बाब इब्ने अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के पास आए कि मुझे मेरा मालिक जो है आग के अंगारों पे लिटाता है, और इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ गए थे कमर में। या रसूल अल्लाह अला तस्तंसिरु लना, आप अल्लाह से हमारे लिए मदद की दुआ क्यों नहीं करते? तो खब्बाब इब्ने अरत ये भी तो कह सकते थे, या रसूल अल्लाह आप तलवार उठाएं हम जिहाद करते हैं, या नबी कहते तलवार उठाओ हम क्या करते हैं, जिहाद। नहीं किया। आपने फरमाया सबर करो, एक दिन आने वाला है कि एक औरत जेवर से आरास्ता होके सन्ना तक चलेगी, इतना लंबा रास्ता तय करेगी, कोई उसे खौफ नहीं होगा, ऐसा अमन दुनिया में कायम होने वाला है। लेकिन तस्ताजिलून, तुम जल्दी कर रहे हो, तो क्यों तलवार नहीं उठाई? इसलिए कि बहुत थोड़े थे और काफिर बहुत ज्यादा पावर में थे। ग्राउंड रियलिटी और असबाब को सबसे ज्यादा फोकस इस्लाम करता है। तभी तो मुसलमान दुनिया में मार खा रहे हैं, बैठे हुए फेंक रहे होंगे, बस बातें कर रहे होंगे, किसी भी चीज का कोई सबब इख्तियार नहीं करते, न सेहत का सबब, बेमौका तवक्कुल। तो नबी ने मक्का में 13 साल सबर किया है, क्योंकि ताकत बोलो नहीं थी, इतने से लोग नहीं लड़ सकते भाई, इतनों से। हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं, वो पत्थर नहीं हटा सकते, और ऐसी कौम को हुक्म दिया जाए कि तुम इनके खिलाफ क्या करो, लड़ाई शुरू कर दो। वहां इतना कर सकते थे कि जान बचा के मक्का से निकल जाएं। जान बचा के क्या करें, ये निकलना बड़ा मुश्किल था, मक्का वाले निकलने नहीं दे रहे थे। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग की है। जब मुशरिकीन ने आपके कत्ल का फैसला किया तो अल्लाह ने वही की कि अब आप मक्का से निकल जाएं, क्योंकि ये आपको कत्ल करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी प्लानिंग की है कि मक्का और मदीना का जो रास्ता था वो इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि मुशरिकीन को पता था इसी ट्रैक पे चले होंगे। ना ना ना, अपोजिट वाला रास्ता जो मदीना से दूर कर देता है, उस रास्ते पे आप चलना शुरू हुए। तो आप तो मोजज़ा और करामत, आपके हाथ पे तो मोजज़े जाहिर होते थे। आप कहते भाई चलो निकलो यार। बचाने वाला कौन है? अल्लाह है भाई। जिस अल्लाह ने मूसा को बचा लिया
समंदर के 2 टुकड़े करके वो मुझे क्यों नहीं बचाएगा, चलो निकलो। ना 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 ना, फरमाया यहां से नहीं उधर से जाएंगे ताकि किसी को शक ही ना हो, किसी को वहम ही ना हो। तो मोजे और करामत के वाकयात सुन के ना, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत पे ईमान लाना है हमने कि अल्लाह कभी कभार इस तरह भी मदद कर लेता है। करना वही है जो असबाब कह रहे हैं। कितने शुगर के मरीजों को देखा है, रसगुल्ले खा रहे होते हैं, कहते हैं मौत तो एक दिन लिखी हुई है और अल्लाह है बचाने वाला। तो मैं उनसे कहता हूं मौत लिखी हुई है, तेरी बहुत जल्दी लिखी हुई है, क्योंकि अल्लाह को पता था ये शुगर का पेशेंट है, लड्डू के डब्बे खा जाएगा, लिहाजा अगली 1 जनवरी से पहले फरिश्तों को ऑर्डर हुआ होता है कि इसकी लिखी हुई है 31 दिसंबर के 12 बजने से पहले उसको उठा लेना, डेट चेंज नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ तो होता है लेकिन वो लिखा हुआ हमारी हरकतों के हिसाब से ही होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? मौत लिखी हुई है लेकिन उसमें हरकतें भी लिखी हुई हैं कि ये इतनी जल्दी मर जाएगा। क्यों? काम सारे मरने वाले करेगा ये, इसलिए क्या हो जाएगा, जल्दी मरेगा। तो मौत का एक दिन यकीनन मुतय्यन है, लेकिन उसके असबाब भी मुतय्यन है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तभी मुसलमानों में आप देख लो, मोटा है तो मोटा ही होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। गैर मुस्लिम असबाब को फोकस कर रहे हैं, वो सुबह उठ के वर्जिश भी करते हैं। मैं थाईलैंड में गया तो फजर की नमाज के बाद मैंने देखा फुल मार्केटें खुली हुई हैं, ऐसे जैसे खचाखच रश होता है बाजार में। अभी सूरज निकला है और इतनी मार्केटें फुल। हमारे यहां तसव्वुर है 12 बजे भी मार्केटें नहीं खुली होती। तो ये कौम सेहतमंद रह सकती है? खाए जा रहे हैं। मेरे सिर्फ पराठे वाले बयानात को फोकस किया हुआ है, वर्जिश वाले बयानात को फोकस किया ही नहीं है। तो ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई, फिर बीमार होते हैं भाई, अल्लाह, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, सेहत भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह बहुत बड़े हैं, यकीनन अल्लाह बहुत बड़े हैं, इसी वजह से तुझे इन लड्डुओं की वजह से बीमार कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं तुझे। तो आज मोजज़े और करामत बरहक हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि मायूस मत होना, बाज दफा सारे असबाब फेल हो जाते हैं। हमने तो असबाब ही इख्तियार करने हैं भाई कामयाबी के लिए, जैसे नबी ने इख्तियार किए। मक्का में जिहाद नहीं किया आपने, फिर गज़वा बदर में भी एक इत्तिफाकी वाकया हो गया, वरना आपका इरादा 1000 के लश्कर से लड़ने का नहीं था। फिर उहुद में भी मुशरिकीन ने पहल की थी, आपने बढ़ के मक्का पे हमला नहीं किया, तो दिफाई पोजीशन में आप लड़े हैं कि दिफा करो अपना, वो तो करना बनता है ना, वो तो करना ही करना था, दिफाई पोजीशन। फिर गज़वा खंदक में चारों तरफ से कबाइल ने मिलकर हमला का इरादा किया, तो भी आपने दिफा पे इक्तिफा किया, बढ़ चढ़ के उन पे हमले नहीं किए। भाई दिफा करो किसी तरीके से, उसमें मशवरे लिए। मशवरे कैसे लिए? सहाबा कराम ने ये जंग पहले कभी देखी नहीं थी कि चारों तरफ से मिलकर कोई हमला कर ले। तो आपने सलमान फारसी को बुलाया कि फारिस में तुमने कभी ऐसी जंग देखी है? उन्होंने कहा हाँ हमने देखी है। क्या करते हो? खंदकें खोदते हैं हम, ताकि दुश्मन अंदर ना आए। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था खंदक, वो खंदकें खोदना आसान काम नहीं था। वो ऐसा नहीं है किसी बिल्डिंग के लिए एक गड़ा खोदा जा रहा है, चारों तरफ वो तमाम एरियाज जहां से दुश्मन के आने का खतरा है, इतने बड़े गड्ढे खोदे जाएं कि दुश्मन का ऊंट और घोड़ा उनको क्रॉस कर ना सके। ये आसान काम था, जबकि मदीना इकोनॉमिकली उस वक्त इंतहाई कमजोर था। भूख से निढाल हो रहे हैं लोग, प्यास से निढाल हो रहे हैं, पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, लेकिन आप कुदाल लेके गड्ढे खोद रहे हैं। वहां भी तो आप कह सकते थे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, मदद का वादा किसने किया है? बोलो, अल्लाह ने किया है। मदद का वादा अल्लाह ने किया है, तो इतनी टेंशन नहीं भाई, बस थोड़ा बहुत मशवरा मैंने ले लिया हजरत अबू बकर से, हजरत उमर से। बाकी फारिस के लोग क्या करते हैं ऐसे मौके पे, वो तो है काफिर। हम लोग होते हैं बोलते काफिर का बच्चा है, उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहे हो, काफिर के बच्चे को, हम ऐसे ही कहते हैं ना, वो काफिर का बच्चा हमें बताएगा कि हमने कैसे जंग लड़नी है। तो हजरत सलमान फारसी मोमिन थे, लेकिन जो स्ट्रेटेजी थी वो किसकी लेकर आ रहे थे? फारसियों की, जो उस वक्त आग की पूजा करते थे। तो नबी ने वो उसको कबूल किया कि बेहतरीन सजेशन है। जब अपना पूरा काम कंप्लीट किया तो फिर मोजज़े जाहिर होना शुरू हुए। फिर मोजज़े हुए हैं कि एक सरीद का प्याला वो 20 लोगों के लिए काफी हो गया। एक दूध का प्याला, एक प्याला है और सारे सहाबा उसको पी रहे हैं, वो प्याला खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपका काम था आपने कर लिया। अब अल्लाह असबाब को फेल करके वो काम जो हमारे बस में नहीं है वो कौन करेगा? अल्लाह करेगा। गर्मी में हमें दुआ मांगने का हुक्म है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हमें आग की गर्मी से बचाना। तो जो एथियस्ट हैं वो यही बात कहते थे, हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई दोबारा हशर नहीं है, कोई हिसाब व किताब नहीं है। अल्लाह ने जवाब देखें क्या दिया अजीब, फरमाया मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन,
یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھو دلیل ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ